Dear students, today we'll study about colloidals. To understand this concept, you have to imagine few things. First of all, just imagine that you have a beaker filled with water. You have 3 beakers filled with water. In one, you add salt and stir. In another, you add starch and you stir. And in the third one, you add sand and you stir. And I think you can well imagine what's going to happen. In the case of salt, the salt will dissolve in the water and you will get a transparent clear solution. These are true solutions. You can't make out where the salt is. Okay, it completely dissolves into it. When you try to dissolve starch in water, a milkiness will appear. Okay, the particles won't settle down. If you put starch and you have in a warm water and heat, and you will get some milky type solution, and if you keep it for some time, it won't settle down. The particles won't settle down. Such type of solutions, they are known as colloidals. Okay, so in this figure you can see first is NaCl in water. It is homogeneous. Colloidal solutions, they are not homogeneous, they are heterogeneous. Okay, the particle size in true solutions is 0.1 nanometer to 1 nanometer, and in case of colloidal solutions it is 1 nanometer to 10 raised to power 3 nanometer. So this differentiates between two, and also the third one, which is the suspension. Suspension, like sand in water, what happens? With time it will settle down. So suspensions are also heterogeneous, and the particle size is larger than 10 raised to power 3 nanometer. Okay, hope you have understood. Now in this chapter we have to study in detail about colloidals. When we consider colloidals, two things we have to remember, like water and starch. So the medium, like water, it is known as the dispersion medium, DM, and starch, which is making the colloidal, which is going into water, that is known as the disperse phase, DP. Okay, so what is colloidal? A substance is said to be in the colloidal state if it acquires a particle size ranging between 1 nanometer to 10 raised to power 3 nanometer on treatment with the solvent. किसी भी particle like starch हो गया या और albumin होता है का, अगर उसमें हम solvent डालते हैं तो वो जो particles का size है वो इस range में आना चाहिए, 1 nanometer to 10 raised to power 3 nanometers, तभी वो colloidal बनता है. ठीक है. So colloidal dispersion, disperse phase, it is made of two things, disperse phase and dispersion medium. Disperse phase is just like solute and dispersion medium is like solvent. This is to remember. Okay, dispersion medium, it is just like solvent, and disperse phase is like solute in the case of true solutions. So these are the differences between true solutions, colloidal solutions, and suspension. This is important, you must remember. First one is true solution is homogeneous, colloidals are heterogeneous, suspensions are also heterogeneous. The particles, they may be ions or molecules. In case of colloidal solutions, the particles are either macromolecules, aggregates, or molecules or atom. Aggregate means जुड़ जुड़ के बड़े बड़े बने हुए हैं, okay? छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं. और in suspension, the particles are aggregates of molecules or atoms. Here they are also aggregates. In colloidal, they may be single or they may be aggregates. In suspension, they are aggregates. Particle size we have already discussed. Okay. Now there are different type of colloidals. Colloidals are also known as sols. Okay. On the basis of disperse phase and dispersion medium, colloidals are differentiated into these categories. You remember one thing, disperse phase cannot be a gas.
इफ़ द डिस्पर्शन मीडियम इज़ ऑल्सो अ गैस। दोनों गैस नहीं हो सकते क्योंकि गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे, वो सोल नहीं बनाएंगे। इसलिए यहाँ देखिए 3 तो सॉलिड डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड, 3 बार तो सॉलिड लिखा, एक बार सॉलिड में सॉलिड, दूसरी बार सॉलिड में लिक्विड, तीसरी बार सॉलिड में गैस जो मीडियम है। फिर लिक्विड के केस में जब तीनों डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन जब डिस्पर्स फेज गैस है तो डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन गैस नहीं हो सकता। इसलिए ये 8 कैटेगरीज में ही डिवाइडेड है, 9 में नहीं। और डिपेंडिंग अपॉन दिस डीपी एंड डीएम, उसका नाम है लाइक सॉलिड इन सॉलिड इज सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड इज सिंपली सोल, सॉलिड इन गैस इज एरोसोल, लिक्विड इन सॉलिड is gel, liquid in liquid emulsion, liquid in gas aerosol, gas in solid foam and gas in liquid foam। और सबके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको लर्न करना है टेबल। ओके, क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। नाउ how are colloidals classified? So they are classified, firstly they are classified on the basis of nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। किस तरीका का इंट्रैक्शन हो रहा है दोनों में, मीडियम में और फेज में। on this base it is divided into lyophilic sols or lyophobic sols। philic means loving, so lyo liquid or philic loving, liquid loving lyophilic sols, and lyophobic hating, liquid hating are lyophobic sols। Then based on the type of particles of the dispersed phase, they are divided into multimolecular colloids, associate colloids or macromolecular colloids। Multimolecular means colloids which are formed by aggregation of small molecules। ओके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर इतना बड़ा साइज हो जाता है कि कोलाइडल रेंज में आ जाता है, वो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स हो जाते हैं। ठीक है, नाउ लायोफिलिक कोलाइड्स दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलाइड्स। इंट्रिंसिक मीन्स लाइक गम, स्टार्च, जेलेटिन, रबर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। ओके, they have an inherent or a natural tendency to form colloidal sols on direct mixing with a suitable dispersion medium and are called intrinsic colloids। as they are solvent loving, they are also known as lyophilic colloidals। क्या होता है, जैसे गम वगैरह आप घर में ट्राई भी कर सकते हैं, गम लेके, ग्लू लेके उसको पानी में डालो और शेक करो तो कोलाइडल बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली उनको मिक्स करने से कोलाइडल बन जाता है। सो दे आर नोन एज इंट्रिंसिक कोलाइड्स एंड ऑल्सो लायोफिलिक कोलाइड्स। Extrinsic colloids, colloidal solutions in which the dispersed phase has no affinity or hates the dispersion medium। okay, lyophobic जैसे होते हैं। these are also known as extrinsic colloids। ठीक है, जिसमें कोई आपस में इंट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में, वो extrinsic colloids होते हैं। then the difference is also very important between lyophilic sols and lyophobic sols। the particles of sol migrate towards anode or cathode in an electric field। लायोफिलिक सोल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द नेचर वो कैथोड या एनोड की तरफ मूव करते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। The solids obtained after evaporation may be reconverted to form the sol by simply shaking them with the dispersion medium। वो रिवर्सिबल होते हैं, वापस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम चला गया तो अगर हम वापस बनाना है तो दोबारा डिस्पर्सन मीडियम डाल के शेक करेंगे तो वो वापस मिल जाएंगे। सो दे आर रिवर्सिबल। लायोफोबिक सोल्स दे मे माइग्रेट और दे मे नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो वापस कोलाइडल्स नहीं बना सकते, हम सिंपल शेक करके तो नहीं बना सकते। सो दीज आर इररिवर्सिबल। लायोफोबिक आर इररिवर्सिबल सोल्स। देन in case of lyophilic sols, the surface tension of the sol is lower than that of the dispersion medium। जैसे मान लो स्टार्च एंड वाटर है, उनका बना हुआ है, कोलाइडल बना हुआ है, तो जो सरफेस टेंशन सोल के ऊपर होगी, जब वो सोल बन गया, जब स्टार्च वाटर के साथ सोल बना देता है, कोलाइडल बना देता है, तो उसकी सरफेस टेंशन कम होती है डिस्पर्शन मीडियम जब वो अकेला था पानी। ठीक है, लेकिन लायोफोबिक सोल्स में वो सेम रहती है, डिस्पर्शन मीडियम और सोल की सरफेस टेंशन। In case of lyophilic sols, the viscosity of the sol is higher than that of the dispersion medium,
and in case of lyophobic soils the viscosity of the soil is the same as that of the dispersion medium. Examples दे रखे हैं, ठीक है, तो ये differences हो गए दोनों के. Now जो हमने देखा था कि उनकी क्लासिफिकेशन के टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बेस पे भी हो जाती है, वो कौन कौन सी होती है? मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स. ओके, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल्स कौन से होते हैं? जैसे स्टार्च एंड वाटर. ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, स्टार्च के बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में जुड़ के इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है कि मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल बन जाते हैं कि वो उस रेंज में आ जाते हैं जो कि कोलाइडल के लिए जो पार्टिकल साइज़ चाहिए हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है. 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर की रेंज में आ जाते हैं. मल्टी मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सा पार्टिकल बना देता है. So multimolecular colloids, they are formed by the aggregation of a large number of atoms or molecules which generally have diameters in colloidal range. Example, soles of gold, sulfur, etc. These atoms or molecules are held together by weak van der Waals forces. So this is about multimolecular colloidals. Then macromolecular colloidals, macro means large, वो मतलब सिंगल पार्टिकल ही इतना बड़ा होता है कि वो 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है डायमीटर, तो सोल्स बन जाते हैं. मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशंस आर ट्रू सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल सो लार्ज दैट दे फॉल इनटू द कोलाइडल रेंज. एग्जांपल्स आर polymers like rubber, nylon, polythene, starch, cellulose, proteins, enzymes, etc. In macromolecular colloidals containing polymers, some polymeric species themselves form ions and hence can migrate in an electric field. ठीक है, जब बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पॉलीमेरिक स्पीशीज़ में उनमें आयंस भी हो सकते हैं और वो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में वो माइग्रेट करेंगे अगर हम बाहर से अप्लाई करेंगे तो. एसोसिएटेड कोलाइड्स, आपने 10th में मिसल्स के बारे में पढ़ा होगा, सोप मॉलिक्यूल्स, वो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं. लाइक उसमें मिसल जैसे बड़ा सा बन जाता है ना, उसके आसपास पॉजिटिव नेगेटिव, इफ़ यू रिमेंबर सोप का मॉलिक्यूल. Certain substances when dissolved in a medium at low concentration behave as normal strong electrolyte, but at higher concentration exhibit colloidal state properties due to the formation of aggregated particles. So the aggregated particles thus formed are called micelles. ये डायग्राम है मिसल्स का, ये देखिए, आपने देखा होगा 10th में पढ़ा है ना. उनके हाइड्रोफोबिक हेड मतलब चार्ज हेड होते हैं, टेल्स होते हैं, और वो रिपल्शन की वजह से जो हेड आसपास पूरा स्प्रेड कर जाते हैं, टेल्स इनसाइड, और वो डर्ट मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेते हैं ना. 10th में पढ़ा था आपने मिसल्स के बारे में. सो मिसल्स फॉर्मेशन जो है वो एक टाइप ऑफ एग्रीगेटेड सोल्स का एग्जाम्पल है. So most common associated colloids are formed by soaps and detergents. Micelle formation takes place above a particular temperature. एक particular temperature के ऊपर जाकर ही मिसल्स बनते हैं, वो टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन के ऊपर ही जाकर वो बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मिसल्स जो बनते हैं उसको हम क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन CMC कहते हैं. ठीक है, क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन, वो कंसनट्रेशन जहाँ उसके बाद ही वो मिसल्स बनते हैं. Now we'll study about properties of colloidal solutions. There are 4 properties: colligative properties, optical properties, mechanical properties and electrical properties. Colligative properties हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और colligative properties कौन सी होती हैं? वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं. तो आप इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए जो डिस्पर्स्ड फेज़ के ट्रू सोल्यूशन में 100 पार्टिकल्स थे, और फिर वो एसोसिएट हो गए और दो का एक मॉलिक्यूल बन गया, और वो मतलब दो का एक पार्टिकल बन गया, और वो कोलाइडल रेंज में आ गया उसका डायमीटर. तो अब क्या हुआ? पहले तो 100 थे, पर दो जुड़ गए, पेयर्स में आके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, पार्टिकल बना रहे हैं. तो अब कितने हो गए? 50 हो गए. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, 100 से 50 हो गया. ठीक है, तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का. जैसे हमने ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं. मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं. एक आपके पास ट्रू सोल्यूशन है,
और एक आपके पास सिंपल सॉल्वेंट है और एक आपके पास सोल है, सेम चीज़ का बना हुआ। तो ट्रू सोल्यूशन में तो मानो 100 पार्टिकल्स थे, डिस्पर्स्ड जो भी सोल्यूट के 100 पार्टिकल्स थे, और जब वो सोल बना तो 100 के 50 रह गए, और प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। और जो ट्रू सोल्यूशन बना था, जब मान लो हमने कुछ डाला और सोल्यूशन बनाया, ट्रू सोल्यूशन बना, तो उसका मान लीजिए कि 120 डिग्री हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया ना। लेकिन सोल का कितना होगा, वो ट्रू सोल्यूशन वाले से कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। तो मान लीजिए 110 के आसपास हुआ, ठीक है। तो सोल का टेम्परेचर, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कम क्यों है, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के कंपैरिजन में उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी इसी तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। सो ये कोलिगेटिव चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपने 9th में टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। जैसे बंद कमरे में अगर खिड़की खुली हुई है, रोशनदान खुला हो, तो लाइट जब आती है तो आपको पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। जब लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ देखिए, ट्रू सोल्यूशन में से लाइट पास कर रहे हैं तो ग्लास के अंदर देखिए आपको लाइट का पाथ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ दोनों रखे हुए हैं, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। लेकिन जब वही लाइट, टॉर्च की लाइट कोलाइडल सोल्यूशन के बीच में से निकलती है तो अंदर आपको पाथ नज़र आएगा। ये आप घर में भी करके देख सकते हैं। ग्लू का बना लीजिए, गम का या स्टार्च का कोलाइडल बना लीजिए, और टॉर्च, अंधेरे कमरे में टॉर्च, उसमें जस्ट लाइट डालेंगे तो पानी में से नज़र नहीं आएगा या नमक वाले पानी से नज़र नहीं आएगा, लेकिन कोलाइडल से आपको लाइट का पाथ नज़र आएगा, ठीक है। होता क्यों है? इट अकर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। सो दिस इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट। ये देखिए, ये वाटर है और ये सोल है, इसमें से जब लाइट पास हो रही है, इधर नहीं नज़र आ रहा, इधर आपको पाथ जो लाइट का नज़र आ रहा है। So the Tyndall effect, the diameter of the dispersed particles should not be much smaller than the wavelength of the light used. So wavelength के comparatively वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर Tyndall effect नहीं होगा, ठीक है। The refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. ये दो conditions हैं कि Tyndall effect कब होगा, ठीक है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने पढ़ा हुआ है 10th में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का, उन दोनों में बहुत अंतर होना चाहिए। और डायमीटर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट उस पर डाली जा रही है, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है काइनेटिक या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था ब्राउनियन मूवमेंट। ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जिगजैग मॉलिक्यूल्स, जब कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में। जिगजैग मोशन ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ना, ऐसे ऐसे, एक से टकराएगा दूसरा, फिर वो दूसरे से तीसरा, तो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। So when colloidal solution was observed under microscope, the colloidal particles undergo ceaseless random motion in all directions over a large area. This motion of dispersed phase particle is called Brownian movement. It was discovered by Robert Brown. Okay. The zigzag motion is independent of the nature of the colloidals but depends on the size of the particles and viscosity of the solution. So this is the condition. Smaller the size and lesser the viscosity, faster is the motion. Okay, ये तो condition भी आपको पता होना चाहिए. So होती क्यों है? The Brownian movement has been explained to be due to the unbalanced bombardment of the particles by the molecules of the dispersion मीडियम. जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के साथ टकराते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो हिलते रहते हैं पार्टिकल्स. अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमने 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है कोलाइडल्स का, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, उसमें ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं. ओवरऑल सोल जो होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स दे आर चार्ज्ड पॉजिटिव और
नेगेटिव, और उसकी वजह से वो एक दूसरे को या तो सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और यही कारण है कि सोल्स जो होते हैं, कोलाइडल्स जो होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, और जब सेम चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, और इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। These are examples of few positively charged souls and negatively charged souls। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, और चार्ज आता क्यों है सोल पार्टिकल्स पे? व्हाट इज़ द रीज़न? फर्स्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, सोल के पार्टिकल्स जब बनाया जाता है, लाइक मेटल्स का इलेक्ट्रो डिस्पर्शन से बनाया जाता है सोल, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से चार्ज आ जाता है। ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सोल्यूशन, ये हम पढ़ेंगे अभी, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल रेयर, ये इसके बारे में आपको अभी समझाती हूँ। ये देखिए कैसे चार्ज आ जाता है। मान लीजिए कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट भी होता है थोड़ा बहुत, तो मान लो Ki या Ni में AgNO3 डालते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है AgI, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से अगर सिल्वर नाइट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो क्या होगा, जो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनेंगे वो सिल्वर को प्रेफरेबली एड्जॉर्ब कर लेंगे अपनी सरफेस पे। सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड जो बना था प्रेसिपिटेट, वो क्योंकि AgNO3 एक्सेस है, तो इसमें से Ag जो है सेम होने चाहिए, जो अंदर प्रेसिपिटेट में भी चार्ज है, और वही चार्ज बाहर होना, वही एलिमेंट बाहर होना चाहिए। तो सिल्वर जो है, सिल्वर आयंस के, इस सिल्वर की वजह से ये सिल्वर आयंस प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे, और इसकी वजह से वो फिर कोलाइडल बन जाता है। ओके, ये देखिए चार्ज आ गया इसके ऊपर, चार्ज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होगी सिल्वर की, नाइट्रेट जो बाहर रह गया। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैरी पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन बाई एड्जॉर्प्शन ऑफ सिल्वर आयंस ऑन देयर सरफेस। समझ आया ना? ये दोनों हमने लिए थे रेक्टेंट्स, ये एक्सेस में था, ये एक्सेस में था, इसलिए ये सिल्वर जो आयंस हैं, ये NO3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव सोल बन जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरे केस में अगर ये एक्सेस में लेंगे तो फिर I एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो नेगेटिव सोल बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इस केस में ये डबल लेयर कैसे बनती है। जैसे सिल्वर आयोडाइड बना था, और अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में लिया होता, तो आयोडीन जो है, आयोडाइड आयंस हैं, वो एड्जॉर्ब होते सरफेस पे, तो नेगेटिव, तो ये एड्जॉर्ब हो गए सरफेस पे। ये सिल्वर आयोडाइड था, आयोडाइड आयंस की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गए। ये जो लेयर बनी ये फिक्स्ड लेयर है, और जो बाहर बचा वो पोटेशियम आयंस हैं, वो मोबाइल हैं, वो डिफ्यूज लेयर है बाहर। ठीक है, और अगर सिल्वर, ये तो नेगेटिव सोल हो गया, अगर सिल्वर एड्जॉर्ब हुए थे, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में था, तो नाइट्रेट आयंस मोबाइल लेयर में ले जाएंगे, और ये अंदर जो है ये फिक्स लेयर बन जाएगा। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है। ठीक है, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से। ये देखिए फिक्स्ड लेयर, फिर ये डिफ्यूज लेयर बाहर जो बच गया। The combination of the two layers of opposite charges around the colloidal particles is called Helmholtz electrical double layer. Since separating of charge is a seat of potential of charges of opposite signs on the fixed and diffused parts of the double layer results in the potential difference. जब भी separation of charge होगा तो potential difference आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो potential difference develop हो जाएगा fixed layer और diffused layer के बीच में, opposite charges का। So this is known as zeta potential और electrokinetic potential. Okay, double layer कैसे बनी समझ आ गया? प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से। और पॉजिटिव कब बनता है? जब पॉजिटिव चार्ज एड्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेस में होते हैं। और नेगेटिव कब बनता है? जब नेगेटिव चार्ज एड्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले एक्सेस में होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको आप समझ लेते हैं। अगर इसमें मान लीजिए हमने कोई ये ट्यूब है यू शेप में, एनोड कैथोड, और इसमें हमने सोल लिया है। ठीक है,
तो अगर तो पॉजिटिव सोल लिया है तो जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव अगर सोल्स हैं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव सोल हैं वो उसके पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे, अगर नेगेटिव लेंगे तो वो एनोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जो मूवमेंट होती है ओके उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द पार्टिकल वो कैथोड या एनोड की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है। इस मूवमेंट को, किसकी मूवमेंट, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लेकिन अगर हम किसी तरीके से बीच में कुछ लगा के उसकी मूवमेंट को रोक दें, ठीक है, और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स की मूवमेंट ना हो पाए तो फिर मीडियम जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, और जब मीडियम मूव करना शुरू करता है तो उसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस, पार्टिकल्स मूव करते हैं डिस्पर्स्ड फेज के तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर मीडियम मूव करता है तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कब होती है? If the electrophoresis is allowed to proceed until the particles reach the oppositely charged electrodes, the particles are discharged and precipitate out, that is known as coagulation. अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक एनोड की इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे जैसे वो मूव करते जाएंगे और पूरी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गए, प्रेसिपिटेशन हो गई। इसको इस प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। पार्टिकल्स जो सोल जो है वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट और इसको सोल का डिफरेंस समझने के लिए, जैसे सोल तो हमने स्टार्च का बना लिया सोल्यूशन है ना, वो मिल्की सा ऐसे जेली गमी ग्लू जैसा हो रहता है ना, और दही जो है अगर पानी में दही डालोगे जैसे वो जब दही अलग हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेट है ना, जैसे कर्डी कर्डी जो लुक आता है ना, पानी अलग और वो अलग, तो वो प्रेसिपिटेशन होती है ना, उस तरीके के प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों प्रोसेस में। प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट्स को जब हम कोलाइड्स में चेंज करते हैं, प्रेसिपिटेट्स टू कोलाइड, उसको पेप्टाइजेशन कहते हैं। ये प्रोटीन्स में भी होता है। प्रेसिपिटेट्स टू कोलाइड्स पेप्टाइजेशन, कोलाइड्स टू प्रेसिपिटेट्स कोगुलेशन। सो ये डिफरेंस जो है दोनों ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। प्रेसिपिटेशंस जो लायोफोबिक सोल्स की होती है वो कैसे होती है? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो अभी अपने स्टडी किया है, बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स। दो ऑपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स कर दो तब भी कोगुलेशन हो जाएगी। बॉइलिंग से हो जाती है, डायलिसिस से हो जाती है, या कोई बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाले तो भी कोगुलेशन हो जाती है। तो ये है कि कैसे होती है, ये 5 पॉइंट्स। हार्डी-स्किल्स रूल, ये रूल क्या कहता है कि अगर ज़्यादा जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो वो उसके पास ज़्यादा पावर होगी प्रेसिपिटेशन करने में। ठीक है, लाइक इसमें अगर एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन किस केस में होगी? इसमें एल्युमिनियम, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value. So this is the definition of coagulating value. Okay. अब ये जो हमने पढ़ा वो लायोफोबिक सोल्स के बारे में था। लायोफिलिक सोल्स का क्या है? There are 2 factors which are responsible for the stability of लायोफिलिक सोल्स। एक तो चार्ज और एक सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से लायोफिलिक सोल्स स्टेबल रहते हैं। अगर इनको हटा देंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, है ना। तो कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। ये लायोफिलिक सोल्स के बारे में था। अब लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो लायोफोबिक सोल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्वेटेड रहते हैं इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और लायोफिलिक कोलाइडल्स जो होते हैं उनमें एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि वो लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम लायोफिलिक सोल को डालें किसी भी लायोफोबिक सोल में, तो लायोफिलिक सोल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक लेयर बना लेते हैं लायोफोबिक पार्टिकल्स के ऊपर और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो फिर वो उसकी कोगुलेशन नहीं होने देगा वो, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइडल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइडल्स। याद रखना, लायोफिलिक कोलाइडल्स ही प्रोटेक्टिव होते हैं और लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. Okay, so now you prepare for your half yearly examination, and if you have any problem in this chapter of surface chemistry, do ask me. Okay, thank you.